with me in your Bibles to the book of Psalm 133 right now. चलिए अपने बाइबल में निकालेंगे सब भजन संहिता की पुस्तक उसके अध्याय 133 में Verse 1. पहला वचन. See what it says. देखिए वचन क्या कहता है. Behold, देखो how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. वचन में लिखा है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें. Notice the words over there. गौर करें जो ये शब्द आए हैं यहाँ. Good and pleasant. भली और मनोहर बात That is used to express the unity of Christians. जो कि देखिए परिभाषित किया जाता है मसीही लोगों की एकता के बारे में. Now notice, they may not be living under the same roof. और गौर करें कि एक ही छत तले वो नहीं रह रहे. They're not living in the same place. एक ही जगह पे भी वो नहीं रह रहे. They're not part of the same denomination. एक ही पंथ के वे हिस्से भी नहीं है. But they can still live together in harmony and unity. लेकिन फिर भी देखिए एक प्रकार से वो एकता में रहते हैं. There's something about unity. कुछ तो खास है आपस में एकता में रहना. There's something about harmony कुछ तो खास है आपस में साथ में रहना. that God is so concerned about. जिसे परमेश्वर बहुत ही फिक्र करता है. If you read Matthew 18, अगर आप पढ़ेंगे मत्ती के 18वें अध्याय में, you know, there's one popular scripture, we don't use it very often. और देखिए वहां पर एक लोकप्रिय वचन है जिसे अक्सर इस्तेमाल किया जाता है. It says, if two of you shall agree. वहां पर वचन में लिखा, अगर तुम में से दो जन सहमत हो जाएं. How many people? कितने लोग? Two of you आप में से दो लोग shall agree as touching upon anything. अगर दो लोग किसी बात के लिए सहमत हो जाएं. If two of you can become one mind on one thing. और देखिए आप में से दो जन किसी एक चीज के लिए एक मन के हो जाएं. God says, I will do it. परमेश्वर कहता मैं करूंगा. That's the power of unity. यही तो सामर्थ्य है एकता की. You know how the Amplified Bible says that? आप जानते हैं किस प्रकार से एम्प्लीफाइड बाइबल इसको बताता है. If two of you can harmonize on one thing, harmonize. उसमें लिखा है कि अगर तुम में से दो जन किसी भी एक चीज के लिए एकता में एक हो जाए. In a band, there are different instruments. और देखिए एक बैंड में अलग अलग वाद्य यंत्र होते हैं. There's a bass guitar. वहां बेस गिटार होता है. There is a lead guitar. वहां पे लीड गिटार होता There है. are keys. कीज होते हैं. There is a drums. ड्रम्स And many other trumpet and other instruments. बहुत सारे वाद्य यंत्र होते हैं. They are not the same instruments. और वे सभी एक समान वाद्य यंत्र नहीं But है. when they come together, they harmonize. लेकिन जब वो एक साथ होकर घुल मिल जाते हैं They produce beautiful music. तब वे खूबसूरत संगीत पेश करते हैं. In the same way, उसी तरीके से you know, we cannot just talk about unity. We cannot just preach about unity. We cannot just write about unity. We have to walk in harmony. We have to walk in unity. Somebody say और amen. देखिए इसी वजह से सिर्फ हम एकता के बारे में बोल नहीं सकते हैं. एकता के बारे में सिर्फ हम प्रचार ही नहीं कर सकते, लेकिन जरूरी है कि हम एकता में चलने लगे, एकता में एक साथ में मिले. Let's walk the talk. चलिए जो हम बोलते हैं उसे करें. You know, see, God is concerned देखिए परमेश्वर फिक्रमंद है not only of our relationship with Him, सिर्फ हमारा संबंध उसके साथ कायम हो इसी में नहीं, but God is also concerned of our relationship with our fellow brothers and sisters. लेकिन परमेश्वर इस बारे में भी फिक्रमंद है कि हमारा संबंध जो है हमारे सगी भाई बहनों के साथ भी कायम रहे. Our relationship हमारे संबंध with our brothers and sisters that are around us, हमारे वे भाई बहन जो हमारे आसपास हैं, it has a direct bearing on the anointing. It has a direct bearing on our relationship with God. इसका सीधा निर्भर होता है अभिषेक के साथ. ये निर्भर होता है देखिए परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है उस पर. So when you dwell with your brothers, when you dwell with your sister, when you dwell with your church members, with the people of, you know, different Christians of different denominations, and you dwell with the holy and godly attitude, God is saying how good, how pleasant that is. Hallelujah. तो देखिए जब आप Wow. अपने सगी भाई बहनों के साथ, आप मसीह लोगों के साथ जो दूसरे पंथ के भी हैं उनके साथ जब आप इस तरह से एकता में रहते हैं, तब परमेश्वर कहता है देखो क्या ही भली और मनोहर बात है ये. What does it mean to dwell in unity? और एकता में बने रहना इसका मतलब क्या है? Maybe we don't agree on everything we say in the body of Christ. और कदाचित देखिए मसीह की देह में जो कुछ भी कहा जाता है उन सारी बातों में हम एक दूसरे का सहमत ना हो, But we don't have to pull down each other in public. लेकिन हमें एक दूसरे को खुलेआम नीचे डालने की बात नहीं करनी We है. don't have to pull down our own brothers and sisters. हमें अपने ही भाई बहनों को नीचे नहीं डालना है. Instead, इसके we बजाय could pray for them. हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं. Instead, इसके बजाय we could be somehow support them. किसी न किसी तरीके से उनके लिए सहारा और मदद बन सकते हैं. That is what is good and pleasant in the eyes of God. यही तो कहलाता है परमेश्वर की नजर भली और मनोहर बात. I believe पूरा यकीन this है. message is needed in the body of Christ. This message is needed in our families today. इस संदेश की जरूरत है मसीह की
देह में इस संदेश की जरूरत है, हमारे परिवारों में भी आज। Now let me talk to you about the blessings that come by living in unity and harmony. और चलिए चर्चा करते हैं इस समय वे आशीषें जो आप पर आती हैं जब आप एकता में साथ रहते हैं। Read Psalm 133 and verse 2 from the Amplified Version. चलिए पढ़ेंगे भजन संहिता का अध्याय 123 का दूसरा वचन में। It is like the precious ointment, precious oil poured on the head. Come on. और देखिए ये इस तरह से लिखा, ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो कि सिर पर डाला गया, That runs down the beard, जो कि दाढ़ी तक बहता हुआ आता है, even on the beard of Aaron, हारून की दाढ़ी पर, the high priest. जो कि महायाजक। And it doesn't stop there. और वहीं पर नहीं रुकता, That comes down upon the collar and the skirts of his garment, consecrating the whole body. फिर वो बहते हुए कॉलर तक आता है, उसके बाद वो उस वस्त्र की छोर तक लगातार बहते हुए पूरे शरीर में चला जाता है। Write this down. चलिए लिख The लीजिए। first thing, पहली चीज, you see the anointing, the blessing is described as precious ointment poured on the head. और देखिए अभिषेक आशीष को यहाँ पे परिभाषित किए गए हैं, यहाँ पर एक उत्तम तेल के समान जो कि सिर पर उंडेला जाता है। One day, एक दिन Jesus was invited by a person called Simon the Pharisee to his home for lunch probably. और एक दिन ऐसा होता है कि यीशु मसीह को आमंत्रित किया गया था शमौन फरीसी नामक एक व्यक्ति के घर में, हो सकता है दोपहर के खाने की बात रही होगी। And a woman comes over there एक महिला वहां आती है and she comes with a flask of alabaster oil और वहां पर वो आती है संगमरमर के पात्र में तेल लेकर and she pours it on the head of Jesus. और आकर यीशु के सिर पर उंडेल देती है। Jesus doesn't know her, यीशु उसे नहीं जानते थे, but she comes and pours it on the head of Jesus. लेकिन वो आती है और यीशु के सिर पर इत्र को उंडेल देती है। And that oil और वो इत्र is a very expensive oil. बहुत ही कीमती इत्र था। It flows maybe on the face, on the beard of Jesus, शायद हो सकता है कि वो सिर से बहते हुए यीशु के चेहरे पर आकर दाढ़ी से बहता हुआ गया on हो, the clothes of Jesus, यीशु के वस्त्र पर right to his feet. सीधे उसके पांव तक। And the Bible says और बाइबल कहती है the whole house was filled with the fragrance. पूरा घर जो है उसकी सुगंध से भर गया। It's a very prophetic picture. ये एक बड़ी भविष्यवक्ताई चित्र है। You see, what देखिए। happened in Psalm 133, जो हुआ था भजन संहिता के अध्याय it 133 में, happened with Jesus. ये यीशु के साथ भी हुआ। You see, Jesus is the high priest. आप देखते हैं यीशु महायाजक हैं, And in the same way, उसी तरीके से the oil was poured upon him. हम देखते हैं कि इत्र उन पर उंडेला गया। But now when this man Simon, he sees what this woman is doing, लेकिन जब ये व्यक्ति शमौन ने देखा जो ये महिला कर रही थी, he doesn't speak it out, तो देखिए वो अपने जबान से मुंह से बोलता तो नहीं है, though he doesn't speak it with his mouth, हालांकि देखिए भले वो अपने मुंह से ना बोला हो, he says it in his heart. लेकिन अपने दिल में वो कहता है What kind of man this is? ये किस तरह का आदमी है। If you only knew who this woman was. अगर सिर्फ इसे ये पता होता कि ये महिला कौन है, This woman is a sinner. ये महिला एक पापी नहीं है, How is he allowing her to touch his feet and wipe his feet with the hair? और कैसे ये इजाजत दे रहा है कि वो इसके पांव को छुए और उसके पांव को अपने सिर के बालों से पोंछे। Notice this. गौर करें, He carried a bad attitude towards that woman. और देखिए उस महिला के प्रति इसके अंदर एक बुरा रवैया इसने रखा था। Maybe he didn't say it, शायद उसने मुंह से ना कहा हो, but he was carrying a bad attitude towards that woman. लेकिन हम देखते हैं उस महिला के खिलाफ में उसने एक बुरा रवैया अपने अंदर रखा था। Please understand अब this. मेहरबानी करके समझिए इसे। The attitude you carry towards your brother, your sister, देखिए जो रवैया आप अपने भाई अपने बहन के प्रति लिए चलते हैं, that will affect your relationship with Jesus. यीशु के साथ जो आपका संबंध है उस पर भी इसका असर पड़ेगा। And then और फिर Jesus turned to the woman and said to Simon. और यीशु उस महिला की और मुड़कर शमौन से कहते हैं, Now notice over here, गौर करें यहाँ पे, Jesus is not looking at Simon, he's looking towards the woman. और यीशु देखिए शमौन की ओर नहीं देख रहे हैं, यीशु उस महिला की ओर देख रहे हैं। It says, do you see this woman? तुम्हें क्या ये औरत दिख रही है? God wanted everyone to watch that woman. Now he says, Simon, I entered your house. और देखिए यीशु ने कहा कि शमौन मैं तेरे घर में आया, You gave me no water for my feet. पर तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी नहीं दिया। But this woman, मगर ये औरत, she has washed my feet with her tears इसने मेरे पाँव को आंसुओं से धोया है and wiped them with the hair of her head. और अपने सिर के बालों से पोंछा है। Simon, शमौन you gave me no kiss. तूने मुझे कोई चुमा नहीं दिया। In those days, उन दिनों में men used to hug and kiss. This was not like a Hollywood kiss. This was like this godly kiss. You know, the Bible और देखिए says. उन दिनों में ऐसा होता था कि मर्द लोग जो एक दूसरे के गले मिलते और Yes. ऐसे 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 आलिंगन करके फिर चुम्बन करते थे। हॉलीवुड Yes. में जो होता है उस तरह का ये Not चुम्बन नहीं all होता that था। crap, you know. उस तरह की बेतुका चीजें But नहीं। this woman has not ceased to kiss my feet since the time I came in. आगे यीशु ने कहा कि लेकिन जब से मैं आया हूं तब से इस महिला ने मेरे पाँव को चूमना छोड़ा नहीं है। Verse 46, very powerful. 46 बहुत जबरदस्त। You, Simon, you did not anoint my head with oil. शमौन तूने मेरे सिर पर तेल लगाकर अभिषेक नहीं किया, But this woman, मगर ये औरत whom you call sinner, जिसे तूने पापी नहीं कहा है, she has anointed my feet
also with the fragrant oil. She has poured it. The anointing has flowed. It has come to the feet now. पर इसने मेरे पाँव को भी तेल से इत्र से अभिषेक किया, ये सिर पर उंडेला जो बहते हुए पाँव तक आ गया है। In those days, आप देखते हैं उन दिनों में when a guest would come home, जब कोई मेहमान घर आते, even in the villages in nowadays, in UP perhaps, in other places, अभी they भी give गाँव में। the water to wash their feet. और देखिए पानी दिया जाता है पाँव धोने के लिए, But Simon did not give Jesus water. लेकिन शमौन ने यीशु को पानी भी नहीं दिया। Jesus is saying, you never gave me water to wash my feet, Simon. और यीशु ने कहा कि शमौन तूने मुझे मेरे पाँव धोने के लिए पानी भी नहीं दिया। Even the ordinary people, they welcome and give a kiss. You did not even kiss me. और जो साधारण से लोग हैं वो भी जब एक दूसरे से गले मिलते हैं, स्वागत करते हो, चुम्मा देते, तुमने तो मुझे ये भी नहीं दिया। And thirdly, तीसरी बात, Simon, शमौन, it is a culture over here to put the oil on the head when a person comes in. और ये तो यहाँ की एक संस्कृति है कि जब कोई व्यक्ति अंदर आता है तो सिर पर तेल डाला जाता है, इत्र डाला जाता है। Simon, शमौन, you invited me, तुमने मुझे आमंत्रित but you किया, did not extend these basic courtesies to me, Simon. लेकिन ये जो मौखिक जरूरी बातें होती हैं उसका तूने ध्यान नहीं रखा। And you are condemning this woman in और your heart. इस महिला की तू निंदा कर रहा है अपने दिल में। Simon, शमौन, your heart is not right. तेरा दिल सही नहीं है, That is why इसलिए the anointing is not flowing. अभिषेक जो है बह नहीं रहा। Somebody lift your hand and say, I receive right चलो now. तो अपने हाथ लगाकर मैं ग्रहण करता हूं You इस see, वक्त। आप देखते हैं when your heart is not right, जब आपका दिल सही नहीं होता, you know, you can sing, देखिए आप गा सकते हैं, you can, well, you know, you can shout, आप चिल्ला सकते हैं, but the anointing will not flow. लेकिन अभिषेक बहेगा नहीं। Your heart is not right with your brother. You know, you're smiling from outside. आपका दिल आपके भाई के प्रति सही नहीं, आप बाहर से मुस्कुरा तो रहे Oh, हैं you are saying praise the और Lord. आप कह रहे हैं प्रभु की स्तुति हो, You are even coming for the meeting, और आप सभा में भी आ रहे हैं, but the anointing will not flow. लेकिन वो अभिषेक बहेगा नहीं। It will be hindered. ये अभिषेक में रुकावट How many of you listening? Shout hallelujah. चिल्लाए हालेलुया। This is why the anointing does not flow through us. और आप देखते हैं इसी वजह से अभिषेक जो हमारे जरिए बहता नहीं, This is why the anointing does not touch our family members. इसी वजह से अभिषेक हमारे परिवार के लोगों को छूता नहीं है। You may be saying, I'm praying, Pastor. शायद आप कह रहे हो कि पासवान जी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, I am fasting, Pastor. मैं उपवास भी कर रहा हूँ पासवान जी। सुनिए, That is why the anointing is not flowing. इसी वजह से अभिषेक बह नहीं रहा। You can fool the people. आप लोगों को बेवकूफ You बना can सकते हैं, fool the pastor. आप पासवान को बेवकूफ बना But सकते you हैं, cannot fool the Lord. लेकिन आप प्रभु को बेवकूफ नहीं बना सकते। Listen carefully. ध्यान से सुनिए इस वक्त, That's why the anointing does not flow. इसी वजह से अभिषेक बहता नहीं है। Raise your hands, such people. चलिए ऐसे लोग अपने हाथ उठाएं। Notice over it says, गौर करिए यहाँ पे, the anointing that was poured on the head, और वो अभिषेक जो सिर पर उड़ेला गया, it flowed on the beard. वो दाढ़ी पर बहता हुआ आया। It flowed on the beard of Aaron, the high priest. हारून जो कि महायाजक था, उसके दाढ़ी पर बहता हुआ It गया, came on the clothes. उसके वस्त्रों पर आया, And what happened? और फिर क्या The होता है? whole body was consecrated. और पूरा शरीर जो है पवित्र कर दिया गया। Whenever the oil comes, जब कभी ये तेल आता है, whenever the anointing comes, जब कभी अभिषेक आता है, God's desire that it should not stay on one person. परमेश्वर की तमन्ना यह होती है कि बस एक ही व्यक्ति पर ठहरी न रहे, It should flow to the whole family. It should flow in the whole church. Somebody say, I receive. परिवार तक बहना चाहिए, पूरी कलीसिया में बहना चाहिए। Now, when you don't have healthy relationships, देखिए जब आपका स्वस्थ संबंध नहीं होता किसी, सामने से अच्छे बात करते हैं, you know, सामने से अच्छी बात करते हैं, but the person goes back. लेकिन पीठ पीछे वो व्यक्ति कुछ. They talk like that. इस तरह से बात करते हैं। No healthy relationships. कोई मजबूत संबंध नहीं उनके साथ। From front, they are very good. देखिए सामने तो बड़ा अच्छा बर्ताव करेंगे, Afterwards, they will talk all crap, लेकिन उसके बाद वो सब बेतुका बात करेंगे, gossiping. कानाफूसी। You see, आप such देखते हैं, people, ऐसे लोग, the anointing will not flow. अभिषेक बहेगा नहीं। Do you have the oil? Yes, you have the oil, क्या but आपके it's पास not flowing. तेल है, हाँ तेल है, लेकिन वो बह नहीं रहा। What good is a river if it does not flow? एक ऐसी नदी जो बह नहीं रही है, उसका क्या फायदा? It will never satisfy anybody's thirst. ये किसी के प्यास को बुझाएगा नहीं। Flowing water is considered as clean water. और बहने वाला पानी जो है साफ पानी माना जाता है। Hallelujah. Hallelujah. The water which is stuck at one place, people don't drink from that. और एक पानी जो एक ही जगह पर अटका हुआ है, लोग उसमें से पीते नहीं है। Flowing water बहने वाला पानी is a source of life. ये जीवन का स्रोत है। In the same way, उसी तरीके से flowing anointing will touch people, deliver people. बहने वाला अभिषेक जो है लोगों को छुएगा, लोगों को आजाद करेगा। You know, many people, देखिए बहुत सारे लोग they only blame the devil. वे सिर्फ शैतान पर आरोप बढ़ते रहते हैं। Pastor, पासवान जी, there is witchcraft, जादू टोने का काम है, there is bondage. बंधन है, But I'll tell you, लेकिन कहते हैं आपसे their hearts are not right. उनका दिल सही नहीं। They come to church, but they're not even saying hello to one another. वे कलीसिया में तो आते हैं, लेकिन एक दूसरे को हेलो भी नहीं बोलते। If that fellow is sitting over there, और अगर वो व्यक्ति वहां बैठा है, they'll go and sit in the corner. तो वो जाके वहां बैठेंगे। If he's coming for the first service, they'll come in the second अगर वो service. पहली सभा में आने वाले व्यक्ति हैं, तो वे दूसरे सभा में आएंगे। This is the way many
of the Christians operate. यही तरीका है, बहुत सारे मसीह लोग इसी में कार्य करते हैं। There are two purposes of the anointing. When God tries to anoint a person, there is two reasons. और देखिए, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को अभिषेक करने की बात कर रहा है तो दो इसके वजह होते हैं। Now many people they say छोड़ना, 2 reason 3 reason, मुझे क्या करना है? But there are some people who really want to learn. देख, कुछ लोग इस बात को झिड़क देंगे, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो सचमुच सीखना चाहते हैं। When you get a new mobile, जब आपको नया मोबाइल मिलता है you learn everything that is in the mobile. तो मोबाइल में जो कुछ भी होता है सब कुछ आप सीखते In हैं। the same way, उसी तरीके when से you have the word of God, जब आपके पास परमेश्वर you का must वचन होता है, learn it, you must study it. आपको सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। How many of you saying an amen to that? कितने लोग कहते हैं, Somebody. आमीन इसके लिए? The two purposes of the anointing. अभिषेक का दो उद्देश्य, The first one, पहला है, those days the oil was poured on the head of the देखिए person. उन दिनों में क्या होता है, उस व्यक्ति पर तेल जो है सिर पर उंडेला It जाता, will refresh the person. उस व्यक्ति को इससे ताजगी मिल जाती Tazgi, hallelujah. All the tiredness will go और away देखिए वे सारी थकावट चली जाती and that person will feel fresh. और वो व्यक्ति जो है बहुत ही ताजा महसूस करता। Many years ago, देख, कई साल we पहले had one barber. एक नाई हुआ करता था, I don't know what oil he used to put. पता नहीं कौन सा तेल वो लगाता, They used to put the oil तेल लगाता हूँ and then they used to do champi. और कुछ चंपी करता He'll put the oil like this. और तेल लगा के देखिए इस तरह से चंपी करता। After that, उसके बाद you feel so nice, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता, relaxed. बहुत ही आराम। Same way, उसी the तरीके से। anointing brings refreshing. अभिषेक जो है ताजगी को लाता है। Secondly, दूसरी in चीज, those days they used to put the oil. उन दिनों में देखिए तेल उंडेला जाता, The fragrance is to fill that house. उसकी वजह से क्या होता, पूरे घर में उसकी खुशबू भर जाती। When the anointing is on your life, जब अभिषेक आपकी जिंदगी पर it होता will है, not only affect you, it will affect the people around ये you. सिर्फ आप पर ही असर नहीं डालेगा, आपके आसपास के लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। Somebody shout कोई hallelujah. चिल्लाए हालेलुया। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? This is so important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Many people don't understand बहुत सारे लोग इस this. बात को समझते नहीं है। They just want to say, oh, pray for me, pastor. वे बस चाहेंगे, प्रभु पासवान जी मेरे लिए प्रार्थना Put करिए, your hand over here. अपना हाथ यहाँ रखिए, After that, you put it here. उसके बाद आपका हाथ यहाँ रखिए। Every whole life इसके लिए प्रार्थना करो, पूरी उसके लिए जिंदगी प्रार्थना करो। अरे तू कब करेगा रे प्रार्थना? तुम पर कभी अभिषेक आएगा। कितने लोग सुन रहे हैं? बोलिए हालेलुया। बोले हालेलुया। When will you grow in the word of God? कब आप खुद परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे? Today, आज you must make a decision. आज आपको एक फैसला लेना I चाहिए। want this anointing of God. मुझे ये अभिषेक चाहिए I प्रभु, want this grace. मुझे अनुग्रह चाहिए। Go to the third verse right now. चले जाते हैं तीसरे मुद्दे पर। Now the anointing is compared now. देखिए, अब अभिषेक की यहाँ पे तुलना की जा रही It is like the dew of Hermon है। ये हेर्मोन की उस ओस के समान है descending upon the mountains of Zion. जो सियोन के पहाड़ों पर से उतरती है, For the Lord commanded the blessing life forevermore. क्योंकि प्रभु ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष को ठहराया है। The word Hermon means devoted or sanctified. ये शब्द हेर्मोन जो आया है, यह समर्पित या फिर पवित्र किया हुआ Now, I've been to Israel 12 or 13 times. और 12-13 बार पासवान जी गए हैं And I've इस्राएल में, studied about these things. इन चीजों पर अध्ययन किए हैं। Hermon is a mountain in Israel which is 9,000 feet above sea level. और देखिए, हेर्मोन जो है 9,000 फीट ऊपर है समुद्री सतह से, And this is the only mountain in Israel which has snow on that. और सिर्फ यही एकमात्र ये पहाड़ है इजराइल में जिस पर ओस शबनम पड़ते हैं And it can be seen from miles away. और कई मीलों दूर से दिखाई पड़ते हैं। Some Bible scholars say that Jesus was transfigured into the glory of God. Mount of Transfiguration. This could be, is they जिसके say. बारे में बाइबल के कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि यही वो पर्वत है जिस पर यीशु मसीह रूपांतरित हुए थे। All throughout the year, पूरे साल भर everywhere else, दूसरी हर जगह पे, there is a drought, wilderness, nothing grows. और वहां पर अकाल सूखा ऐसा पाएंगे जहां पे कुछ बढ़ता नहीं है, But on this mountain, लेकिन इस पहाड़ पर there is always greenery. हमेशा हरियाली दिखती है। That's why the scripture says इसलिए वचन कहता है, that dew comes on Hermon. और देखिए वो शबनम जो है उस हेर्मोन पर आती है, That's why it will always be green. इसलिए हमेशा ये हरियाली दिखती है। When this anointing of unity comes on you, देखिए, जब ये एकता का अभिषेक आप पर आता है, every time हर बार your life will be a blessing to people. आपकी जिंदगी जो है लोगों के लिए आशीष बनेगी। Somebody shout hallelujah. हालेलुया। Come on, everybody shout hallelujah. सब लोग कहेंगे हालेलुया। Unity, it will bring healthiness everywhere. और आप देखते हैं एकता जो है हमेशा हर जगह पर आप देखेंगे वहां पर स्वस्थ और मजबूती को लाएगा। So now I will come to the last point. चलिए आते हैं अब आखिरी मुद्दे पर। How can this unity come? कैसे ये एकता आ सकती है? You see, it's very, very important. और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण If you are है। listening, अगर ये सुन रहे हैं आप, God has made you to listen to this message. परमेश्वर ने खुद किया है कि आप इस संदेश को How सुनें। can this unity come? कैसे ये एकता आ सकती You see, है? if you read Psalm 133 अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता का अध्याय 133, and verse 3, in verse 3 it says, देखिए तीसरे वचन में कहा है, the dew of Hermon, हेर्मोन की वो शबनम many people don't understand, descending on the mounts of Zion. सियोन के पहाड़ों पर वो उतरती है। Hermon is so tall.
और देखिए हेर्मोन बहुत ऊंचा है And the Mount of Zion in Jerusalem is very small. और हम देखते हैं कि यरूशलेम बहुत ही छोटा। There are two mountains over here. आप देखते 2 पहाड़ हैं यहाँ पर, But the dew of Hermon, which is top, it's still coming on the ordinary low-lying mountains. हेर्मोन का जो शबनम जो है वो बहता हुआ नीचे के जो पर्वत है उन तक भी पहुंचता The है। first thing, पहली चीज, humility is the key to the unity. नम्रता जो है एकता के लिए चाबी है। You know, nowadays, देखिए इन दिनों में many times, बहुत बार you know, God will start using you. परमेश्वर देखिए आपका इस्तेमाल करना शुरू करेगा। थोड़ा सा कुछ आने लगा, बस नाक ऊपर करके चलते लोग. थोड़ा सा कुछ होता है तो लोग गर्दन सीधा कर लेते हैं। They will forget the pastor, they will forget what, you know, and then they will do their own देखिए thing. वे अपने पासबान और सारी चीजों को भूल जाएंगे, बस अपना ही वो करेंगे। Pride comes in. घमंड आ जाता But है। when a man, when a woman लेकिन जब एक आदमी, एक औरत begins to walk in humility, जब वे नम्रता में चलने लगते हैं, people want to be associated with that person. लोग उनके साथ मिलना जुलना पसंद करेंगे। That is the key to unity. यही तो एकता के लिए चाबी है। Do you want unity in your family? क्या आप अपने परिवार में नम्रता चाहते Do हैं? you want unity in your organization? क्या आप अपने संगठन में वो एकता चाहते हैं? What is humility? Humility is not bending and walking like that. और देखिए नम्रता का मतलब ये नहीं कि आप झुक के ऐसे चलें। Humility is saying, tell me, I'm ready to listen. नम्रता का मतलब होता है कि मुझे बताओ, मैं सुनने का तैयार हूँ। मैंने जो गलत किया मुझे बताओ, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मैं समझने के लिए तैयार हूं, मैं बदलने के लिए तैयार हूं। उसे कहते हैं नम्रता। कोई तो कहे हालेलुया। कोई तो कहे हालेलुया। You know, to remove your chappals and walk like that, you know, that is अपने not चप्पल humility. उतार के ऐसे झुक कर चलना ये नम्रता नहीं है। This is not humility, this is drama. ये तो बस एक ड्रामा है। But real humility is लेकिन असली का जो नम्रता होता है to learn. वो है सीखना। You know, don't be afraid to learn from even children. और देखिए बच्चों से भी सीखने में डरिए नहीं। Don't be afraid to learn from ordinary people. और जो साधारण से लोग होते हैं उनसे भी सीखने में आनाकानी मत Today करें। nobody wants to learn. आज कोई सीखना नहीं चाहता। Mary Suna, मेरी सुनो, that fellow is a proud fellow. वो व्यक्ति जो एकदम घमंडी व्यक्ति। The second one, दूसरा, how this unity will come? कैसे एकता आएगी? Sacrifice of self. अपने को स्वयं को आप बलिदान You see, करें। Lord Jesus, देखिए प्रभु यीशु He was God. वो परमेश्वर था। He is God. वो परमेश्वर है। He could have sacrificed all his 12 apostles, you know. अपने सभी 12 प्रेरितों को वो आसानी से बलिदान कर सकते हैं। चलो रे, तुम लोग सब बलिदान हो जाओ, तुम लोग सब 12 लोग सब बलिदान. No. He sacrificed himself. लेकिन उन्होंने अपने आप को बलिदान किया। Many times बहुत बार we want to sacrifice others instead of sacrificing ourselves. देखिए हम अपने को बलिदान करने के बजाय हम दूसरों को बलिदान करना चाहेंगे। बोले तू मर, मैं बचना चाहता हूँ. तुम मरो, मैं बचना चाहता हूँ। But you see, लेकिन आप देखते हैं, sacrifice of self is important. और देखिए स्वयं को बलिदान करना बहुत महत्वपूर्ण है। When some problem comes in our life, देखिए कुछ समस्या जब हमारी जिंदगी we में want खड़ी the होती है, whole world to pray for us. हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया हमारे लिए प्रार्थना करे। Hey, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो. Pray for me. मेरे लिए प्रार्थना करो। But when the others have a problem, लेकिन जब दूसरों के लिए प्रार्थना समस्या होती है, you will not pray. तब आप प्रार्थना नहीं करेंगे। Sacrifice of self. स्वयं को बलिदान करना This is so important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Many people, oh, somebody died in my house, nobody called me. और बहुत सारे लोग इस बात की शिकायत करते हैं, ओ मेरे घर में किसी का देहांत हो गया और किसी ने मुझे कॉल भी I नहीं had किया। so many problems. मेरे इतनी सारी समस्याएं सामने Nobody आई। called me. किसी ने मेरी That's why I'm परवाह not नहीं की। coming to church. इसलिए मैं कलीसिया में नहीं आ रही। When others had a problem, where were you, man? जब दूसरों के सामने समस्या थी तब आप कहाँ थे? You see, all it's only about self. और देखिए सब कुछ बस स्वयं के बारे में ही निर्भर है। When you say, Lord, जब आप कहते हैं प्रभु no problem. कोई बात नहीं, If that person has not called me, अगर उस व्यक्ति ने मुझे नहीं बुलाया I will still call him. फिर भी मैं कॉल I करूंगा, will still visit him. फिर भी मैं मिलना I चाहिए, will still say hello to him. फिर भी मैं उनसे हेलो You बोलूंगा। are sacrificing yourself. आप अपने आप को स्वयं को आप बलिदान कर रहे हैं। You are a person of unity. देखिए आप एकता वाले व्यक्ति हैं There will be unity anointing on your life. और ऐसी एकता का अभिषेक आपकी जिंदगी पर Wherever होगा। you go, जहाँ कहीं आप जाएंगे people will come with you. लोग आपके साथ आएंगे। I know this is not a popular message, but this grace will come in your life. जानते हैं कि ये लोकप्रिय सा संदेश नहीं है, लेकिन ये अनुग्रह आपकी जिंदगी पर आएगा। Everybody wants bless me. हर कोई चाहता है मुझे आशीष दो, Bless me, you know? मुझे आशीष दो। बस उतना ही चाहिए. आशीष आती है, चली जाती है फिर. जैसा सामने के दरवाजे से आती है, पीछे के दरवाजे से चली जाती है. When the Holy Spirit came on the church, जब पवित्र आत्मा कलीसिया पर आया, everybody they gave towards God's work. उन्होंने परमेश्वर कामों के लिए अपने भेंट अर्पण दिए। Giving is sacrifice. देना जो होता है ये एक बलिदान तौर पे होता Nowadays nobody wants to give. है। इन दिनों में कोई देना नहीं चाहता। When देखते you हैं, give, जब देते हैं, it is maybe to give your time of prayer, maybe to help in the ministry. It's not only of giving of finance. सिर्फ ये आपका पैसा ही देना ही नहीं, It's giving to God's work. लेकिन परमेश्वर कामों के लिए देना, Your time, आपका समय, your energy, आपकी ऊर्जा, your finance, आपके पैसे, your prayers. आपकी प्रार्थनाएं।
I'm telling you, church. कहते हैं आपसे कलीसिया। When somebody is said something wrong against you, जब किसी ने आपके खिलाफ में कुछ बुरा कह दिया हो instead of making it a big issue, और देखिए बड़ा उससे मुद्दा बनाने के बजाय should tell him it's okay, छोड़ो, बोल दिया, हो गया, खत्म. No, आपको कहना चाहिए चलो छोड़ दिया, आप बोल दिया ना, जाने दो. sacrifice. बलिदान, That will bring unity. यही तो एकता को लाएगी. घर खड़े करना बहुत आसान है, लेकिन वो घर को बांधे रखना और चलाए रखना सिर्फ बलिदान से चला सकते हो. Somebody say amen, कोई everybody. कहे आमेन इस वक्त. कितने लोग कहते हैं amen? कितने लोग कहते हैं आमेन. Many of you are married. आप में से बहुत सारे शादी Please listen to me carefully. सुनिए बड़े ध्यान से. You know, the husband is counting. देखिए पति जो है गिनते रहता है. हाँ, I said sorry 3 times last मैंने time. पिछली बार 3 बार मैंने सॉरी बोला. Now I will say sorry. अब मैं क्यों सॉरी बोलूं? Husband hallelujah, hallelujah. हाँ? गिनता है कितनी बार मैंने सॉरी बोला. Wife is also counting. पत्नी भी गिनती है. मैंने तो 4 बार सॉरी बोला. मैंने तो 4 बार सॉरी बोला. Why I will say sorry now? मैं क्यों सॉरी बोलूं? हाँ, and very soon बहुत जल्द the family is destroyed. परिवार तबाह हो जाते हैं People's marriages are in courts. और लोगों की शादियां जो है अदालत में पहुंच जाती People look at such people and say, "Arey, these are Christians. हैं. और लोग जो बाहर के लोग ऐसे लोगों को देखकर कहते हैं अरे ये तो मसीह लोग हैं. They used to go for the service." ये सभाओं में जाया See करते what हैं. happened. देखो क्या हो गया. See, people of God, परमेश्वर के लोगों sacrifice of self. स्वयं को बलिदान If the करना. front person has not said sorry, you humble yourself, you sacrifice, you tear yourself and say, Lord, it's for you I'm doing it. Sorry, चल हो गया खत्म. और देखिए सामने वाला व्यक्ति अगर आपको सॉरी नहीं कह रहा है, माफी नहीं मांग रहा, तो चलो आप कहेंगे प्रभु आपके वजह से चलो मैं क्षमा करता हूं, मैं माफी You're not doing for them. आप उनके लिए नहीं कर रहे हैं, You're doing for the Lord. आप प्रभु के लिए कर रहे हैं. Can I tell you something? क्या आपसे कुछ कह सकते Through हैं? such a person, ऐसे व्यक्ति के the जरिए anointing will begin to flow. अभिषेक बहने लगेगा. Somebody raise your hand and shout hallelujah. चिल्लाए हालेलुया. And the third thing, और तीसरी चीज, how this unity will come. कैसे ये एकता आएगी. We need to be a praying family. We need to be a praying church. और देखिए एक परिवार हमें बनना है जो प्रार्थना करने वाले परिवार हो, प्रार्थना करने वाली कलीसिया सेवकाई हो. When I was a small child, देखिए जब 5 बार छोटे बच्चे थे, there was a priest. एक याजक, He used to priest tell- हुआ करता. he used to वो कहते tell हैं- us. वो कहते हैं, A family that prays together परिवार जो साथ में मिलकर प्रार्थना करता है stays together. वे साथ में बने रहते हैं. That time I did not understand. उस समय पर समझ में नहीं आता था. And then I met some great men of God all over the world. उसके बाद परमेश्वर के बड़े महान जनों से पूरी दुनिया भर में मिले. God is using them all over the world. परमेश्वर पूरी दुनिया भर में उनका इस्तेमाल I कर. asked them, उनसे पूछे what is the secret that God is using you? वो क्या रहस्य है जिसके जरिए परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर रहा है. And they said, और फिर उन्होंने कहा we as a family pray together. हम एक परिवार के रूप में मिलकर प्रार्थना करते हैं. I'm telling you, कहते हैं आपसे are you praying as a family? कि आप एक परिवार के रूप में प्रार्थना करते हैं. Maybe not for a long time. शायद लंबे समय के लिए ना हो, For a short time you can pray. कुछ थोड़े समय के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते When you pray as a family, हैं. जब आप एक परिवार के रूप में the प्रार्थना Holy करते Spirit will come upon you. हैं, पवित्र आत्मा आप पर आएगा. All the misunderstanding, सारी गलतफहमियां, those demons will be removed in Jesus' name. विदेश आत्माएं निकाल दी जाएंगी यीशु के नाम में. Somebody shout hallelujah. चिल्लाए हालेलुया. Are you praying as a church? आप एक कलीसिया के रूप में प्रार्थना कर रहे हैं. Please listen to me. सुनिए ध्यान से. Many times बहुत बार. I tell all my pastors, अपने सभी पासवानों से कहते हैं be careful of the people who don't pray. और वे लोग जो प्रार्थना नहीं करते उनसे सावधान रहना. बड़ा बड़ा बात करेगा वो लोग. But if they are not praying, लेकिन अगर वो प्रार्थना नहीं करते, be careful of them. सावधान रहना उनसे. कितना भी स्माइल करेगा, डर के रहना, बच के रहना उनसे. When you pray together जब आप साथ मिलकर प्रार्थना in करते हैं, intercession, प्रार्थना मध्यस्थी, in fasting and prayer, उपवास और प्रार्थना में, all the confusion, the misunderstanding that is between you will be removed. और सारी गड़बड़ी, सारी गलतफहमियां आप लोगों के बीच में जो है वो निकाल दी And जाएंगी. God will begin to heal और relationships. परमेश्वर संबंधों को चंगा करने लगेगा. Are you having problems in your marriage? क्या आपकी शादी में कोई समस्या है? Begin to start praying as in your marriage. आपकी शादी में प्रार्थना करना शुरू करें मिलकर. Unity will come. एकता आएगी. Are you having problems in your home? क्या आपके घर में कोई समस्या है? Confusion, fights. और गड़बड़ी, लड़ाई झगड़े. Pastor, you come. What pastor come? Pastor is sitting to you to come to your house or what? Huh? Where he comes? कहाँ आएंगे? One fellow calling in Virar, one fellow calling in Churchgate. एक व्यक्ति उनको विरार में बुला रहा है, एक व्यक्ति चर्चगेट में बुला रहा है. And then you are angry, pastor did not come. और फिर आपको गुस्सा आता है कि पासवान जी आए नहीं. But blessed is the man who listens to the word. Somebody say लेकिन धन्य वो व्यक्ति जो hallelujah. वचन को सुनता है. Pastor मेरे घर पे नहीं आए. तू कुछ भी चाहेगा वो करेगा और pastor को घर पे बुलाएगा. नहीं sir. You have to pray आपको प्रार्थना करना है in your house. आपके घर में. And you see that unity will come. और देखते हैं कि वो एकता आएगी, The harmony will come. वो संगति आ जाएगी. And that will be a big advertisement for the glory of God in your area. People will say, look, that family, how it is. And then when you invite them to church, you invite them for the work of the Lord, they will come. Somebody shout hallelujah. Come फिर on, दुनिया के everybody. लोग देखें आपके एरिया के लोग देखकर देखें वाहवाही करेंगे और देखें जब आप उनको आमंत्रित करेंगे कलीसिया में आने के लिए तो वो जरूर आएंगे. Are you having a business? आपके पास क्या व्यवसाय है कोई? Go and
and pray in your business. जाकर अपने व्यवसाय में प्रार्थना करें। Before starting your stall, before starting your business, before starting your shop, pray in that place. आपका वो स्टॉल शुरू करने से पहले, आपकी वो दुकान शुरू करने से पहले, आपका व्यवसाय शुरू करने से पहले प्रार्थना करें। And you see और आप देखेंगे that unity and blessing will come. वो एकता और आशीष आ जाएगी। Partners will become one. पार्टनर्स जो एक हो Your जाएंगे, business will grow. आपका व्यवसाय बढ़ेगा। Somebody lift your hand and shout अपने hallelujah. हाथ लगा चिल्लाएं हालेलुया। There was a businessman in Goa. गोवा में एक व्यवसायिक हुआ करता, Among his staff, among his business partner, there was a lot of confusion. उनके स्टाफ, उनके बिजनेस पार्टनर्स लोगों के बीच में बहुत सारी गड़बड़ियां थी। I told that man, उस व्यक्ति से उन्होंने कहा, go 15 minutes before you open your shop. अपने दुकान शुरू करने से पहले 15 मिनट पहले जाना, Go inside अंदर जाओ, and pray. जाके प्रार्थना Tell करो। your staff, those who are Christians, to pray. और जो स्टाफ से भी कहना, जो लोग मसीह प्रार्थना करने को, Within 15 days or 20 days, 15-20 दिनों में he called me उन्होंने कॉल की, and said, Pastor, उन्होंने कहा पासवान जी, things are changing in my shop. मेरी दुकान में चीजें बदल रही हैं। Earlier, पहले there was no business. कोई व्यवसाय नहीं होता था, But now, लेकिन अब their business is coming. Hallelujah. व्यवसाय आ रहे हैं। Same thing will happen to you. यही चीजें होंगी आपके Your साथ भी। business will grow. आपका व्यवसाय बढ़ेगा, Your family will be आपका blessed. परिवार आशीषित होगा। Somebody shout hallelujah. कोई चिल्लाए हालेलुया। Are you listening right now? सुन रहे हैं इस And वक्त? that's what the word says. और इसलिए वचन कहता For है, there the Lord commanded the blessing. वहीं पर प्रभु ने आशीष की आज्ञा दी है। Where? कहाँ? The place of unity. एकता के जगह पे, The place of harmony. वहां पे जहाँ पे संगति होती है, Only there God will put a blessing. वहीं पर परमेश्वर देखिए आशीष को रखेगा। Husband and wife praying for a child. पति पत्नी जो है बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, But they are fighting. लेकिन वो लड़ रहे हैं। You think God will give them a child? आपको क्या लगता है परमेश्वर उनको बच्चा देगा? God will say, अरे बाबा ये लोग झगड़ रहे हैं, कल बच्चा आएगा, बच्चा किधर, ये किधर. That is why God does not bless. इसलिए परमेश्वर आशीष नहीं देता। You are saying, Pastor, lay hand on me, put oil on me, put this and put that. Nothing will work. You have to come to the place of unity. देखिए आपको एकता के स्थान पर आना है। Open your heart today to the अपने दिल को Lord. खोलिए आज। Anyone can work alone. कोई भी अकेले काम कर सकता You know, है। many people, देखिए बहुत सारे if लोग, the pastor tells them something, next day they don't come for the अगर service. पासवान जी उनसे कहते हैं कुछ करने के, तो अगले दिन वो सभा में नहीं आएंगे। I'm telling you. कहते हैं आपसे, The mouth is like some big potato. उनका मुंह जैसा उबला हुआ आलू जैसा हो जाता है। Such people, they don't know to work together as a team. ऐसे लोग जो है टीम के रूप में काम करना नहीं जानते। You know, in the corporate world, देखिए कॉर्पोरेट जगत में, you know, they want to see people who's working in a team. और देखिए वे उन लोगों की तलाश में होते हैं जो टीम के साथ मिलकर काम They करें। want to work as a team leader. वे एक टीम लीडर के रूप में काम करना चाहें। Such people are promoted. ऐसे लोगों को ही उनको तरक्की मिलती है। अरे कंप्यूटर कोई भी संभालेगा रे, एक आदमी कंप्यूटर 10 घंटा बैठेगा कुछ, लेकिन people are wanting to see how one person can work with as a team. Are you a team player or are you a solo man? और देखिए लोग चाहते हैं, उस व्यक्ति को तलाश करते हैं जो कि टीम के साथ मिलकर काम करें। आप टीम के साथ मिलकर काम करने वाले व्यक्ति या फिर अकेला काम करने वाले I व्यक्ति? challenge you today. आज आपको चुनौती देते हैं, Work as a team. एक टीम के रूप में काम It's करें। not easy, ये आसान नहीं है, but God will start using लेकिन you. परमेश्वर आपका इस्तेमाल करने लगेगा। There will be some struggle, there will be some pain. God is scraping you, cutting you, shaping you, you know. कुछ ना कुछ संघर्ष, कुछ ना कुछ दर्द ऐसे रहेंगे, लेकिन परमेश्वर देखिए आपको काटेगा, आकार देगा, आपको ढाल लेगा, But God will use you. लेकिन परमेश्वर आपका God will say, इस्तेमाल this person, करेगा। परमेश्वर का ये व्यक्ति, he's walking together. ये साथ में मिलकर चलता है। When God wanted to do miracles, जब परमेश्वर आशीष काम करना चाहता He था, did not send one person. उसने एक एक व्यक्ति को नहीं भेजा, He sent two person. उसने दो व्यक्ति को भेजा। अकेला कोई भी काम कर सकता है, हाँ, लेकिन दो जब मिलके काम करते हैं ना, थोड़ा बहुत खिचपिच होता है, थोड़ा आवाज होता है. That time God did उस miracles. समय पर परमेश्वर आशीष काम I किया। want to tell all the members watching. सभी सदस्य जो देख रहे हैं उनसे कहना I चाहते हैं, want to tell everyone listening to me. हर कोई जो सुन रहे हैं उसे कहना चाहते हैं, Can you work as a team? क्या आप टीम के रूप में काम करेंगे? Oh, I don't want to be under anyone. ओ मैं किसी का अधीन में नहीं होना No चाहता। blessing. कोई आशीष नहीं। Work as a team. टीम के रूप में काम करें, किसी का अधीन में रहें, You will do great आप things. 5 चीजें करें।